Hello students, let's start with the next lecture. This is the fourth lecture. I also want to say that there would be a lot of repetition during the lectures, but it is required because these are the very basis of all other things. So be very patient and listen to it, try to absorb it. Okay, now we were talking about the alleles, right? I told that alleles are the genes which code for a pair of contrasting traits. So they are slightly different forms of the same gene. Now when I want to express these genes by a alphabetical system, what I can do is, we had studied that in first filial generation the all plants were tall. So whatever trait, tall or dwarf, in this case it is tall. So the trait that was expressed at F1 generation, we will denote it by capital letter, that is T, T for tall. And the traits that were not expressed at F1 generation but again expressed at F2 generation, we will denote them by a small letter, that is capital T. So tall is shown by capital T and dwarf is shown by small t. At F2 we will show by small t. So capital T and small t are actually alleles of each other. Okay, so the pair of alleles for height, how many combinations are possible? See, you have two alleles, capital T and small t. So combinations that can be possible are capital T, small t and capital T, small t. As you can see, capital T and small t are homozygous. We have studied these terms earlier. Capital T, small t, since they are different gametes, they are known as heterozygous or hybrid. Now, this capital T, capital T, whatever it is, when you are denoting it with the help of the gametes, it is known as genotype. But when you talk about physical character, that whether it is tall or dwarf, it is known as phenotype of the plant. As you can see, in capital T, small t, genotype is different, but its phenotype is same, that is tall. So now in a dissimilar factors, that is where you have one capital T and one small t, one factor is expressed at F1. Which is that factor? It is capital T. So one that is expressed at during F1 generation is known as dominant, that is tall. And one that was not expressed in F1 generation is known as recessive, that was dwarf. So in this kind of monohybrid cross that we just discussed, I can say that capital T is dominant over small t. Now please note that capital letter is used for dominance and small letter, small case, is used for recessive. Why did we not try this? Like if I write tall, it is expressed as capital T and dwarf is expressed as small d. Do you think it would be simple or it would be more confusing? It will be confusing, children, because it will be difficult to remember that capital T and small t are alleles of the same gene. So when I write capital T, small t, it is heterozygous and the gene is controlling the same character, that is height. So capital T, small t is a hybrid and it is a monohybrid because we are talking about mono, single character, that is height. And when I cross capital T, small t and capital T, this kind of cross will be considered as a monohybrid cross. Okay. Now you have seen that the recessive trait, it was not expressed in F1 and in F2 it was expressed without any kind of blending or mixing. आपने टॉल को और ड्वार्फ को जब क्रॉस ब्रीड किया तो आपको मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, या तो टॉल मिलता है या तो ड्वार्फ मिलता है. क्यों ऐसा? यू कैन हैव अ गिव रीज़न ऑफ 2 marks. सो एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग एट द गैमेट फॉर्मेशन लेवल, tall and dwarf plant both undergo meiosis, they will produce gametes. अब ये जो gametes हैं, they will be having alleles of the parental pair. तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है
तो अलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि जब कैपिटल टी था तो उसमें से कैसे गैमेट्स फॉर्म हुए, दोनों कैपिटल टी टाइप के। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए, उनका मिक्सिंग नहीं हुआ। गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी में से दो तरह के गैमेट बने। फ्यू गैमेट्स कैरिड ओनली कैपिटल टी एंड फ्यू गैमेट्स कैरिड ओनली स्मॉल टी, एंड ओनली वन ऑफ द अलील वॉज ट्रांसमिटेड बाय द गैमेट। अब ये जो प्रोसेस है कि कौन सा वाले गैमेट में कौन सा वाला जीन जाएगा, कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा, तो दिस इज़ अ रैंडम प्रोसेस। सेग्रीगेशन या तो सेपरेशन ऑफ अलील्स इज़ अ रैंडम प्रोसेस एंड देर इज़ अ 50% चांस दैट द गैमेट विल कंटेन आइदर अलील। गैमेट के पास कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा, इसका 50% चांस है। और रिज़ल्ट क्या, हमको कैसे पता चला कौन सा गया, कैपिटल टी गया या स्मॉल टी गया? तो द रिज़ल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय अ क्रॉस विच आई विल टीच यू। हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है कैपिटल टी वाला प्लांट, इट प्रोड्यूसेस अलील्स कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, मतलब सारे गैमेट सेम ही होंगे, सब में कैपिटल टी ही है। लेकिन जब एक इसी तरह से स्मॉल टी जब पेरेंट्स स्मॉल टी वाले प्लांट जब गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल टी, ऑल ऑफ देम विल बी सेम। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेट्स विल फ्यूज़। तो देखो सपोज़ कौन से तरह के गैमेट्स फ्यूज़ हुए, कैपिटल टी फ्यूज़ हुआ तो कैपिटल टी वाला जाइगोट मिला और ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हुए तो आपका जाइगोट कैसा बना, ऐसा, और ये कैसा होगा, ड्वार्फ। लेकिन अगर एक गैमेट ऐसा आया और एक गैमेट ऐसा वाला फ्यूज़ हुआ तो आपका जाइगोट कैसा बनेगा, आपका जाइगोट कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, लेकिन वो टॉल होगा। ऑल्दो ये जीनोटाइप हाइब्रिड है, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा, पर जीनोटाइप हाइब्रिड या तो हेट्रोजाइगस है। अब ये जो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि प्लांट होता है, ये प्लांट में से गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के वक्त अलील्स सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक अलील जाता है जाइगोट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही सिंपल पुनेट स्क्वायर से एक्सप्रेस की जा सकती है। सो व्हाट इज़ पुनेट स्क्वायर? इट इज़ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग production of gametes by plant, then formation of zygote and F1 and F2 plants। ये जो तरीका है पुनेट स्क्वायर का, ये किसने बताया था? अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट। सो अगेन इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, व्हाट इज इट? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ जेनेटिक क्रॉस। मतलब अगर मैंने आपको गैमेट्स दे दिए कि मैं आपको कैपिटल टी स्मॉल टी या इस तरह के गैमेट देती हूँ, तो मुझे बताओ कि जाइगोट किस तरह का बनेगा। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पुनेट स्क्वायर से की जा सकती है। इसमें हम क्या करेंगे, गैमेट्स लिखेंगे, पहले कितने गैमेट्स पॉसिबल हो रहे हैं उनको लिखेंगे टॉप रो और लेफ़्ट कॉर्नर में, और फिर उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे और उससे हमको एक आउटपुट जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। लेट मी जस्ट डू इट एंड शो यू। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू पुनेट स्क्वायर टू अंडरस्टैंड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अब मेरे पास पेरेंट्स हैं जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हैं, मतलब अगर कैपिटल है तो दोनों कैपिटल, स्मॉल है तो दोनों स्मॉल। तो समझो मैंने फीमेल ले लिया टॉल प्लांट और मेल ले लिया ड्वार्फ प्लांट। अब इसमें से दो तरह के गैमेट्स बनेंगे पर दोनों सेम हैं, कैपिटल टी। यहाँ पे भी दो तरह के गैमेट्स मिले, स्मॉल टी। अब मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी और गैमेट्स को लिखूंगी टॉप रो में और लेफ्ट कॉलम में। सो दिस इज़ हाउ आई ड्रॉ अ पुनेट स्क्वायर फॉर F1 जनरेशन। अब मैं इसके कॉम्बिनेशंस लिखूंगी। कॉम्बिनेशंस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सो द कॉम्बिनेशंस विल बी
स्मॉल टी कंबाइंस विथ कैपिटल टी, तो मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्दो ये इससे कंबाइन कर रहा है, हम पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा, फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा, फिर वापस ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखेंगे और ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखेंगे। तो अब हमारे पास जाइगोट की सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। हमने क्या देखा, जीनोटिपिकली सेम ही तरह के जाइगोट मिले हमको। अगर हम 100% प्रोबेबिलिटी देखें तो सारे के सारे जाइगोट कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो तो उसका जीनोटाइप हो गया। सबका फिनोटाइप कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। अब ये जो F1 जनरेशन है इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो अब मेल और फीमेल दोनों सेम ही तरह के हैं ना, दोनों के पास यही जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें से कैसे गैमेट्स बने, कैपिटल टी एक बना कैपिटल टी वाला और 50% वाले बने स्मॉल टी वाले। सेम थिंग हियर। अब ये गैमेट्स को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब उसके कॉम्बिनेशंस करो F2 जनरेशन में, ये दोनों मिलके ऐसा आया, ये दोनों मिलके ऐसे आया, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों। अब देखो कितने तरह के जीनोटाइपिक फॉर्म्स मिले हमको। कैपिटल टी उसको यहाँ रख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिखो। अब ये तो सेम ही है तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर स्मॉल टी उसको यहाँ लिखेंगे। तो अब कैपिटल टी कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 1 + 1 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो हमको कितने तरह के जाइगोट मिले, जीनोटिपिकली देखें तो 3 तरह के जाइगोट मिले, पर फिनोटिपिकली प्लांट कैसे होंगे, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, सिर्फ ये वाला ड्वार्फ होगा। तो 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन कितना होगा, 3:1। मैं रिपीट करती हूँ, फॉर अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइपिक रेशियो एट F2 जनरेशन विल बी 3:1। अब यहाँ पे देखो मेल ने जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए वो अलग अलग थे। 50% कैपिटल टी वाले थे, 50% स्मॉल टी वाले थे। और यहाँ पर भी जो एग्स प्रोड्यूस हुए वो एग्स भी देखो अलग अलग थे। 50% एग्स कैसे थे, कैपिटल टी वाले। अब एक्चुअली इसमें क्या होगा, दैट व्हेन द एग इज़ प्रोड्यूस्ड, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ा ही है, तो एग में से 4 बनते हैं, उसमें से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही रह जाता है। तो सपोज़ ये वाला एग है, ऑल द एग्स विच आर हैविंग टी, इसमें से 50% को ये वाला पॉलन पॉलिनेट करेगा, 50% को ये वाला पॉलन पॉलिनेट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला पॉलन पॉलिनेट करता है आपको जीनोटाइप मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे एग्स कैसे हैं, स्मॉल टी वाले, पर पॉलन 2 तरह के हैं। तो कौन से तरह का पॉलन पॉलिनेट करता है वो डिसाइड करेगा कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। अच्छा, एक्सटर्नली आप प्लांट को देखकर बता सकते हैं, टॉल है वो तो दिख रहा है, पर किसकी वजह से टॉल है, कैपिटल की वजह से टॉल है या कैपिटल स्मॉल की वजह से टॉल है, ये दोनों सेम ही लगेंगे। तो आप सिर्फ प्लांट को देखकर उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते कि वो ऐसा है या ऐसा है, पर इसको जानने का एक तरीका है। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी कि इसका हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पेरेंट होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। सो जीनोटाइपिक रेशियो जो है हमारा 1:2:1, इसको हम एक मैथमेटिकल बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। मैंने आपको बोला था मेंडल वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग, इजंट इट। हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाइगोट की, कि कितने जाइगोट कैसे बनेंगे, यहाँ भी फाइंड की। अब हम बिना क्रॉस किए भी बता सकते हैं कि 75% टॉल होंगे, 25% ड्वार्फ होंगे। कैसे बता सकते हैं, देखो यहाँ एक मैथमेटिकल इक्वेशन स्टडी करेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है
कि अगर मैं एक हेट्रोजाइगस पेरेंट यूज़ कर रही हूँ, what is the probability of having capital T and small t gametes? So capital T will appear with a frequency of 50%. Small t will also appear with a probability or frequency of 50%. मतलब आधी probability है कि वो कैपिटल T होंगे और आधी probability है, फ्रीक्वेंसी है कि वो स्मॉल t होंगे. अब एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर. इसका एक्सपांशन क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस by स्क्वायर. अब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. पहले हम ax का स्क्वायर करेंगे, मतलब हाफ t का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे हाफ स्मॉल t का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे? 2 इंटू ये हमारा a था, ये हमारा b था. अब ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे. यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? हाफ बचा और एक कैपिटल T स्मॉल t बचा, और यहाँ पे इसको 2 बार लिखेंगे. तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 1/4 कैपिटल T. दिस इज़ 1/2 कैपिटल T स्मॉल t एंड दिस इज़ 1/4 स्मॉल t. तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो जाइगोट होगा वो ऐसा होगा? देर इज़ ओनली 1/4, मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जाइगोट हेट्रोजाइगस होगा? 50% प्रोबेबिलिटी है. और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ होगा? इट इज़ ओनली 1/4 प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ 25% प्रोबेबिलिटी. और ये भी ध्यान रखिए कि कोई मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं हुआ. यहाँ पे सारे टॉल थे, यहाँ पे 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, बट कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं था.